Hi friends, I'm Sapna Agarwal, creative director at Ansa Interiors और आज हम आर.के. गुप्ता जी के साथ हैं, He's डायरेक्टर एट आर.के. मार्बल. वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू मैम, थैंक यू. आज बहुत सारा हमने आपके पत्थर देखे एंड दैट वॉक एंड टूर जो हमने टॉप टूर किया इससे पहले, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. आपने इतने तरीके के पत्थर दिखाए और अभी तो हम मानेसर भी शूट करके आए हैं आपका, which is such a big warehouse. Yeah, it is the largest in the country, in any city. अच्छा. And not only in the country, in the world. At one single place, such a large variety of marble. Single plate. There are factories, yes, everybody has stock. But in a city specific, this is the largest warehouse in the world, where you get all the varieties in one place, more than 17 to 20 lakh square feet. Oh, yes, okay. Yes. Okay. तो आज ना मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे जो जनरली मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते रहते हैं. So I just thought कि यार डायरेक्टली आपसे ही पूछते हैं वो सारे सवाल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम सारे पत्थर को इटालियन बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इटालियन नहीं है. Yes, ma'am. It is like this. See, because initially all colored marble started from Italy. Correct. As we know, the most popular colors, if we look at 15 years before, Parletto, Botticino, these were the two beige colors. Majorly very chalte popular. the. And then Rosa Verona used to be in colored marble. Satvario was another figure. But in last 10 years, see now deposits in Italy is also depleting. Correct. And now exploration, if you look at like in Rajasthan, let's start similar analogy to Rajasthan. Our marble in Rajasthan starts from Alwar, goes up to Amet and Udaipur. So this is called Aravalli range. Correct. Similarly, in Europe earlier it was only that Italy it was being mined. But if we see other adjoining, whether Turkey, these are all one connected mines. So today, if you see the world, 80% marble comes from Turkey. Turkey has given birth to beige, white, colored, beautiful. And I also want to remove one simple doubt of consumers. See, consumer feels only Italian marbles are good. हाँ, करेक्ट. एक नोशन है ना, एक बहुत नोशन है. और मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझाता हूँ कई बार कस्टमर को, भाई आज देखो गूगल को हेड कौन कर रहा है? इंडिया से. सो इट इज नॉट द प्लेस यू बॉर्न, इट इज द क्वालिटी यू इनहेरिट. करेक्ट. मार्बल एक बेसिक कैल्साइटिक रॉक है. मार्बल एक बेसिक कैल्साइटिक रॉक है. जैसे कि हम एक आदमी की स्किल्स को जानते हैं, ऐसे ही मार्बल को अगर हमने नाप तोल करनी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे करें. उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन क्या है, उसकी स्क्रैच हार्डनेस क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, उसकी फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ क्या है. ये क्वेश्चन करें तो अच्छा लगता है, ना कि ये क्वेश्चन करें कि ये इटली का है या वहां का. Just the place of origin obviously cannot define the quality of any product. Does not matter. So that we always tell to consumer, please try to find out these information from your vendors. कि सर इसकी scratch hardness कितनी है. It is measured in more. Normally as a standard, marble is generally between 3 to 4. Granite comes 4 to 6. Quartzite comes 6 to 8, and the diamond is the highest 10. Okay. Yes. So जब हम imported stone की बात करते हैं, उसके कुछ डेफिनेट एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डेफिनेट डिसएडवांटेजेस हैं. कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे इसमें जो कलर्स अवेलेबल है या ग्रेन्स अवेलेबल है वो इंडियन स्टोन में नहीं आते हैं. बट इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इट हैज बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया नाउ? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टुडे इन एनी प्रोजेक्ट्स, वेदर इट इज योर ओन हाउस, whether it is your corporate office, whether it is a hotel, or whether it is hospital, everything is built with lifestyle. See, as we have seen abroad, India में पहले imported marble ज़्यादा use नहीं होते थे, because our economy was in a different shape. हाँ, पहले हमारी इकोनॉमी डिफरेंट थी और इंडियन मेड इन इंडिया बहुत प्रमोटेड था. और पहले अगर हम आज से इवन कार्स में जाएं तो कार्स में पहले मारुति में भी नॉन एयर कंडीशन गाड़ी. करेक्ट. राइट. आज मर्सिडीज तो है ही, लेकिन मर्सिडीज के इक्विवेलेंट देयर आर सो मेनी ब्रांड्स. ऑडी, जैगुआर. राइट. सो टुडे एज वी हैव अराइव्ड इन लाइफ, हाउ डज यू जज योर लाइफस्टाइल? You are wearing a Armani suit or
you are having a Italian sofa. रीजन तो ये होता ही है कि हाँ हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेस कर गई है, बट स्टोन में अपने आप में ऐसा क्या कैरेक्टर है जो उसका देखिए एडवांटेज सबसे है? इम्पोर्टेंट है स्टोन की एस्थेटिक वैल्यू. I must say the God has created such beautiful paintings, natural paintings. See, we are paying for Hussain painting 20 lakhs. Look at this marble which is installed on this wall. It's so natural, which the God has made it, which God has made it. And these paintings are coming at a very economical. See, I always say, Actually, every stone is different to another. Yes. एक तो natural है, तो characteristics बड़े and, change. and another very important thing, see, फ्लोरिंग में जैसे कई बार लोग कहते हैं यार हम मार्बल महंगा है तो मार्बल क्यों लगाएं? I always say put any natural stone on your flooring, टाइल नहीं लगाएं. हाँ, because उसमें obviously कुछ advantages हैं. एक सबसे हम बेसिक कर सकते हैं. एडवांटेज जो मैं हर कस्टमर को, एंड दिस आई हैव attended one seminar in Varuna. Varuna is the largest fair for marble stone. Every year it is happening in Italy. So there were some American architect who was studied very deeply. See, all हमारे बुजुर्ग हमें कह के गए हैं कि धरती से जुड़ो, सुबह नंगे पैर चलो. पर आज हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम सुबह 8 बजे जूते पहन के निकलते हैं, शाम को 8 बजे घर में घुसते हैं, राइट? और घर में आके थोड़ा बहुत नंगे पैर चलते हैं. अगर वो जो नंगे पैर जब हम चलते हैं तो जैसे एक बिल्डिंग में हम अर्थिंग करते हैं कि लाइटिंग, जब उस बिल्डिंग जो अगर अर्थिंग है, लाइटिंग अगर गिरी तो वो सीधी अर्थ में चली जाती है. ऐसे ही हमारा दिन में इतनी नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिविटी को जैसे ही हम मदर अर्थ पे पैर रखते हैं वो हमें शांति प्रदान करती है. अगर उस समय भी हम घर में टाइलों में चलेंगे तो हम मदर अर्थ से कनेक्शन हमारा, और वी डेवलप इरिटेशन, इट इज वी डेवलप इरिटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ठीक कह रहे हैं आप. आई थिंक एक स्पिरिचुअल कनेक्ट तो रहता ही है जब आप नेचुरल एलिमेंट्स के साथ रहते हैं. तो इंपोर्टेड मार्बल में जितने खूबसूरत कलर्स, भाई देखिए आज आप ज्वेलरी में देखें, हम स्टोन्स कितने खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के ज्वेलरीज हम क्यों पहनते हैं? टू लुक आवरसेल्फ मोर ब्यूटीफुल. So this is one way of beautifying our home. Yes, your home. If you really want to beautify your home, this imported marble is the way to play. What are the disadvantages? मतलब एक तो डेफिनेट है कि इसमें क्रैक्स तो होते ही हैं, क्रैक्स फिशर्स होते हैं. अब हम हैं. उसमें बताएं कि कोई भी चीज जितनी, अगर देयर आर ऑलवेज यू कांट हैव बटर ऑन बोथ साइड ऑफ ब्रेड, बट अगर आप उसको अच्छे ढंग से परख के खरीदते हैं. अब अनफॉर्चुनेट पार्ट है पूरे वर्ल्ड में दीज मार्बल्स, जो बिकॉज इटली में शुरू हुआ, वहां पे इसकी एक प्रोसेसिंग डिफाइन की गई कि जब ये मार्बल कटता है, बिकॉज इट हैज पिनहोल्स, इट हैज फ्लाइंग स्मॉल क्रैक्स, सो दीज मार्बल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड, एंड उसकी ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है. एवरी मार्बल इज रिक्वायर्ड टू बी हीटेड इन फर्नेस. आई एम कॉलिंग इन फॉर ए कॉमन लैंग्वेज. दिस इज अ प्रोसेस फॉर 2.5 hours at a constant temperature. It is heated so that it becomes dry, and then a very high quality volatile epoxy is applied so that it enters into small pores. Now this is, marble is organic and epoxy is inorganic, so the polymerization should take place. Okay. And for doing this, again it is reheated in furnace for constant temperature, वो आपस में एक cohesive bonding बने and वो joint खुले नहीं. Unfortunately इंडिया के अंदर 80% मार्बल अनप्रोसेस दिखता है. इसीलिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लोग अनप्रोसेस मार्बल खरीद लेते हैं थोड़ा सस्ते के कारण, उनको बाद में वो क्या होता है, इट इज लाइक टूटी हुई हड्डी आपने खरीदी, टूटी हुई हड्डी को आपने जोड़ा नहीं तो धीरे धीरे फिर पेंट करता है, फिर आप जोड़ देते हो तो वो परमानेंट सील नहीं होती. तो साल 2 साल में वो जॉइंट्स फिर खुलते हैं, फिर आपका 40 से 50 रुपए रीपॉलिशिंग का खर्चा आता है. तो आपने इनिशियल कॉस्ट में 50-60 रुपए बचा लिए, बट वो एक सस्टेनेबल कॉस्ट आपने अपने लिए क्रिएट किया. बट व्हेन इट कम्स टू आरके मार्बल, क्या आपके सारे पत्थर प्रोसेस्ड हैं? यस मैम, वी डू नॉट सेल एनी मार्बल अनप्रोसेस्ड. ओके, वी डू नॉट सेल एनी मार्बल अनप्रोसेस्ड. तो सारे जितने भी हम इटालियन पत्थर आपसे लेते हैं वो सारे 100% प्रोसेसिंग के यस, साथ वी वर्क प्रोसेस. एंड व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉलेशन, जैसे आप पत्थर किसी ने खरीद लिया, उसके बाद इंस्टॉलेशन रिलेटेड काफी इश्यूज रहते हैं वेंडर्स के. यस, बिकॉज़ अच्छे माल को अच्छे
हाथ से निकलेगा तभी वो सुंदर होगा। यस उसमें आपकी क्या असिस्टेंस? मैम, हमारा कोशिश हमेशा है जब हम कोई भी कंज्यूमर हमारे पास आता है, जब पत्थर खरीदता है, तो हम उसको स्पेशली इंस्टॉलेशन के बारे में जरूर बताते हैं। बिकॉज जैसे आप एक अच्छी ड्रेस खरीदते हैं, अगर आज हमने अरमानी का सूट पहना या आपने एक डिजाइनर ड्रेस पहनी, तो उसके ऊपर स्टिचिंग का बहुत अच्छा होता है। That's exactly my point. तो it is- Workmanship उतनी हम important है मार्बल आपके लिए। लेइंग को लेबोरियस जॉब समझते हैं। इट इज नॉट ए लेबर, दीज ऑल मार्बल लेयर आर आर्टिस्ट। Correct. वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट लाइक एन आर्टिस्ट। ये नहीं कि भाई वो लेबर आ रहा है, चल भाई काट दे स्टोन। दिस इज नॉट द वे। दे आर रियल आर्टिस्ट एंड उस आर्टिस्ट की एक कॉस्ट है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जब मैं कई बार कंज्यूमर से बात करता हूँ, वो स्टोन तो ले रहा है 500-600 रुपए का, फिर कहता है साहब ये तो 50 रुपए में लग जाएगा। हाँ, उसको correct. वो इंडियन मार्बल, देखिए इंडियन मार्बल की कॉस्ट 60-70 रुपए थी। अब आप समझे 60 रुपए के मार्बल के लिए आप 50 रुपए खर्च कर रहे थे। लेकिन हम 500 आज 500 रुपए के मार्बल के लिए आप 100 रुपए नहीं खर्च कर रहे, जबकि वो उसके परसेंटेज रेशियो में बहुत कम है। कोई भी इंडियन मार्बल जो 50 से 100 रुपए की रेंज का आता था, उस समय भी जो लेइंग कॉस्ट थी मैडम 30 रुपीज से 50 रुपीज वेरी करती थी। ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर आप 100 रुपए भी लगाए तो 30% कॉस्ट है लेइंग की। ये बट आप इंस्टॉलेशन में हेल्प कैसे करते हैं? देखिए एक अच्छा आर्टिस्ट अपनी कॉस्ट जो लेता है वो लेता ही देखिए, है। हम बट दो- आरके मार्बल एज सच Yes, हाउ डू दे हम ये दो चीजें कहते हैं कि देखिए जैसे आप मार्बल, इसमें ये नहीं कि आपने आज आप अपना घर डिजाइन करा रहे हैं, अगर आपने सीधा ओनली डिजाइनर के ऊपर छोड़ा तो डिजाइनर इज नॉट एबल टू मेक हाउस व्हाट यू वांट। यू हैव टू गिव सम सजेशंस, करेक्ट, दैट्स व्हाट माय पॉइंट यू हैव टू गिव इज। इनपुट। तो गाइडेंस तो होनी सिमिलरली चाहिए। जब आपके घर में मार्बल आ रहा है तो आपका जो ठेकेदार है, एक बार आप चेक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जॉइंट्स। आपकी जो चॉइस है, आप पहले तो जो भी मार्बल ठेकेदार है उसका कोई काम है वो देखें, उसने कैसा काम किया हुआ है। और जब वो यहाँ पे करने आ रहा है तो मार्बल इंस्टॉलेशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके जो कटिंग ब्लेड्स हैं, जो मशीन टूल यूज कर रहा है वो सही क्वालिटी के यूज कर रहा है, नहीं कर रहा। बट क्या आपके एंड पे कोई गाइडेंस देता है? Yes, we have guidelines of marble installation and polishing. पॉलिशिंग में भी आज हम चाहते हैं कि बिल्कुल डायमंड पॉलिशिंग आए, तो उसके लिए एक सीरीज ऑफ स्टोन्स हैं। हम 0 ग्रेड से स्टार्ट करते हैं 1500 ग्रेड। उसके बाद भी एक पॉलिशिंग, मार्बल पॉलिशिंग पाउडर आता है, जिसको की पॉलिशिंग करने से आपकी जो शाइन है वो 95% ग्लॉसोमीटर, जो मार्बल की शाइन हम मेजर करते हैं ग्लॉसोमीटर, करेक्ट। तो वो 95 प्लस आपकी आएगी। लेकिन कुछ लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, तो वी हैव क्रिएटेड अ राइट अप, इट इज ऑन आवर वेबसाइट आल्सो, पीपल कैन डाउनलोड। एंड देन इंपॉर्टेंट है कि आज हम मार्बल इज ए कैल्साइटिक, एज आई सेड, एंड मार्बल हैज सर्टेन, इट इज अ सॉफ्ट आइटम आल्सो, बट एट द सेम टाइम नाउ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज कम, there are good chemicals which has come which make them impregnant. आप फाइनल पॉलिशिंग के बाद वो केमिकल लगाए जाते हैं उसके, so that anything which drops on that it gives you certain breathing time to clean it. स्टेनिंग के लिए इटालियन में क्या कर सकते हैं? स्टेनिंग के लिए देखिए देयर आर गुड कंपनीज वर्ल्ड वाइड, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बेलिंजोनी है, टेनिक्स है, दे ऑल बिल्ड वेरी गुड केमिकल्स। जो ओनली अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इंडिया में लोगों को नॉलेज नहीं है और हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। हम ठेकेदार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जो मर्जी लाए लगा दे। हमें खुद एजुकेट अपने आप को देखना है, अपने डिजाइनर के साथ बैठना चाहिए। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप कह रहे हैं कि अगर आप राइट अप देते हैं वेंडर Yes. को भी कैसे इंस्टॉल And करना है, कैसे and पॉलिश there are करना in है। India के अंदर अब all these companies have set up their field team and they guide people. बट अभी भी अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है कि हम लोकल वेंडर्स के केमिकल्स यूज कर लेते हैं कई बार, which are detrimental, and we are spending the same cost. We do not involve ourselves. I personally say consumers should sit with his designers and marble vendor and take guidance, and then we should work in a very transparent manner. No, that I totally agree, because जैसे आपके साथ हमने भी कई साइटें की है, हाँ, कुछ साइटों पे इश्यूज भी आए हैं जिसमें वेंडर को ग्रेन मैच करनी नहीं आई या स्टोन Right. कटर को ठीक से काम करना नहीं आया, तब हाँ. भी आपकी टीम गई थी। yes. उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, नंबरिंग प्रोसेस समझाया, कटिंग प्रोसेस समझाया, उसके बाद आगे इंस्टॉलेशन हुई। टुडे आई थिंक See, it is like this, doctor and patients. अगर हम सोचें कि आज हम एक डिस्टेंस रख के काम करते हैं कि वेंडर हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं मिले, वो पता नहीं क्या करेगा। अरे वो कॉन्ट्रैक्टर इज एन आर्टिस्ट, और
वेंडर डॉक्टर की तरह है, उसको वर्ल्ड वाइड का एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज का आप एडवांटेज उठाएं। आपके साइट पे जब मटेरियल पहुंचता है, आप वेंडर के टेक्निकल टीम को बुलाएं, आपके आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग कराएं कि भाई इस मार्बल को काटने के लिए किस, अब जैसे आजकल देखिए दीज ऑल मार्बल्स आर वेरी डेलिकेट। देयर वाज टाइम कि हम कई बार कि इतने फ्रेजाइल होते हैं कि उसको हैंडलिंग करना, आज वैक्यूम कप्स आ गए हैं, हाँ, ट्रू, राइट? लेकिन जो ऑर्डनरी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके वो वैक्यूम कप्स होते ही नहीं, वो हाथ से उठाते टूट और वो हाथ से उठाते टूट जाता है। अगर आपने देखे सामने वो पतली स्ट्रिप लगी हुई है, उस स्ट्रिप्स को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो एक वुडन बैटन से आप उस पत्थर के पीछे चिपकाएंगे ताकि वो पूरे पत्थर को सपोर्ट मिले, और तब आप उसको प्ले। तो दीज आर ऑल टेक्निक्स। टेक्निकल गाइडेंस जो मैं Yes. आपको कह रही हूँ कि ये टेक्निकल गाइडेंस एक्चुअली बहुत मिसिंग है हमारी Yes. इंडियन टीम में। इनफैक्ट हमने कुछ अच्छे जो मार्बल कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया में, दे हैव इवन मेक देयर वीडियोस एंड समटाइम्स आई शेयर विद देम, ये जो मार्बल कॉन्ट्रैक्टर है ये 150 रुपए क्यों चार्ज कर रहा है, वो जो 60 रुपए वाला है क्या उससे पूछो, उसने नाम सुना है वैक्यूम कप का? ट्रू दैट, आई मीन आई टोटली एग्री Yes. कि हमें अगर हम वेंडर्स के साथ मिल के उनको अच्छे से मतलब देखिए आज आप माइकल एंजलो लगा रहे हैं 1,500 रुपए, 1,000 से शुरू होता है, 3,000 रुपए तक माइकल एंजलो जाता है, इतना कॉस्टली पत्थर है, और एक आप 40-50 रुपए अपने इंस्टॉलेशन में बचाते हैं, तो आपका इतना महंगा पत्थर को आप अगर उसमें उसने 50 स्क्वायर फीट भी खराब कर दिया तो आपका, ट्रू दैट, एक ही बात आ जाएगी। तो आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ा एजुकेशन की कमी है। एग्री, मतलब हमारे यहाँ जो थोड़ा सा गैप है वो ये है कि देयर इज नो टेक्निकल Right. सेटअप, मतलब Yes. जो स्टोन कटर का बेटा है वो स्टोन कटर बन जाता है, बट एक एजुकेशन सिस्टम इम्पार्ट हो जाए है। और And client has to take interest. Yeah. I think इसमें designer and vendor both together can solve the client problem. व्हाट अबाउट एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स? आप पे तो काफी सारे एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। Yes. देखिए आज एक्सटीरियर में there is a vacuum, because पहले अगर आप देखें तो एक्सटीरियर में मोस्टली ट्रेवंटाइन यूज होता था, हाँ, बट उसके Right. अपने ड्रॉबैक्स बहुत उसके अपने ड्रॉबैक्स आते हैं। आज उसके बाद लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल स्टोन यूज करने शुरू कर दिए, दे आर अ गुड प्रोडक्ट, बट एज यू नो आर्टिफिशियल हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दे हैव अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। We have introduced 10 mm granites with very different finishes, which are going to create an very beautiful हमने facade. देखे अभी काफी सारे Yes. आपके वो And they are into very price cost effective. देखिए आज आप एक 20 mm ट्रेवंटीन भी लगाते थे, तो 20 mm ट्रेवंटीन की आप ड्राई क्लैडिंग्स कर रहे हैं, तो वो भी आपको 500 रुपए से कम पत्थर नहीं पड़ता था, और 200 रुपए आपकी उसमें आप फिलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, 100 रुपीज उसका भी चार्ज देते हैं। आज हमारी ये अच्छी जो ग्रेनाइट्स हैं 550 रुपए की रेंज में बहुत अच्छे फिनिशेस वाले ग्रेनाइट हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, तो and there people have started using it and liking it, and I'm sure this will be a very long lasting product for the I'm facade. sure there is a great future to that. Yes. But आपके साथ हमारी एसोसिएशन इतनी पुरानी है, हाँ। आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने? देखिए हमें आपके साथ सबसे अच्छा ये लगता है कि यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर क्लाइंट्स एंड योर वेंडर। आज सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, मतलब पंजाबी में डाले हैं। हाँ आप देखिए आज आरके मार्बल इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी इन द बिजनेस। अगर ये है, अगर देखिए हमने जब आपको एक बात बताएं जो हमारे चेयरमैन साहब हमें हमेशा बताते हैं, जब 1989 में बिजनेस शुरू किया तो हमने बाजार से व्हाइट मार्बल लाते थे और बेचते थे किशनगढ़ में। तो हमारा सिंपल सिद्धांत था भाई ये क्रैक है, तो कस्टमर को दिखाते थे देखो ये क्रैक है, ये थप्पी अगर आपको 70 रुपए की मिल रही है तो इसमें क्रैक है, वो 100 रुपए मिल रही है उसमें कम क्रैक है। तो कोई मकराना वाले सज्जन आए, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब को भी, आपका वो जो छोटा भाई है वो वहाँ बैठे हैं, वो तो क्रैक बता रहे हैं, भाई साहब आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा देखो हम ग्रेन मर्चेंट हैं, अगर गेहूं अलवर का है तो अलवर का बिकेगा, एमपी का है तो एमपी का। सही बात है, ऑनेस्टी आई थिंक बहुत पे और करती है, अगर बहुत long term अगर में आप पे उन्होंने करती है। कहा अगर इस मार्बल बिजनेस में झूठ बोलने से काम चलता है तो हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे। अब आप देखिए उस सच के कारण कंपनी 5 साल में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्बल कंपनी बनी। True. तो वही ट्रस्ट हमने आज कमाया है, और वही चीज हमें आपके साथ अच्छा लगता है कि आप जो भी डिजाइन हैं, जो भी चीजें आप कस्टमर्स की सुनते हैं। कई बार देखिए हम आते हैं, हम मैनी डिजाइनर्स कम, वो कस्टमर की कोई चॉइस हो तो वो अपनी चॉइस कस्टमर के ऊपर ज्यादा डाल दें। एक्चुअली बहुत
कस्टमाइज्ड फील्ड है। अगर Yes. आप क्लाइंट की नहीं सुनेंगे तो फिर आप उसके लिए घर नहीं बना रहे हैं, आप बस आप- अपने अपने सपने पूरे कर अपने रहे हैं। से तो हमने आपके नॉर्मली देखा है आपकी जो डिजाइन हैं दे आर कस्टमाइज एंड इंडिविजुअल। कभी हमने ये नहीं देखा कि दो डिजाइन दो घरों में आप सिमिलर काइंड पत्थर यूज कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा अदरवाइज वी सप्लाई, हमें पता है कि ये आ गए तो ये तरह के पत्थर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के Thank you साथ so एंड यू मेक न्यू क्रिएटिव्स एंड ऑलवेज यू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बड़े सारे हमारे डाउट्स भी थे जो क्लियर करने थे। Thank you, बस ma'am. काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो हमसे सवाल पूछते रहते हैं, Yes, हम these are- समझाते हैं तो अच्छा Absolutely. लगता है वो आप डायरेक्टली समझाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बहुत फॉर अच्छा बीइंग लगा विद अस। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, friends. Thank you for being with us today. And for any kind of architecture and interior design consultancy, you can contact us on www.ansarengineers.com. See you next week. Bye.